Hello everyone, I welcome you all in Gills Mentor e-learning platform। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ MCQs ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਫਰਦਰ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਸ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਾਰਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਐਂਡ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, MCQs ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬਿਲਸ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ MCQs ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਸੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਸੈਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਮੀਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਨ 3 ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਲੱਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫੈਬਰਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ। ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜੋ 2 ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ 3 ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਨਿੰਗ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਸਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਿੰਗ ਆਲ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਮੀਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫੈਬਰਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਨਿੰਗ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਨਿੰਗ ਤੋਂ। ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 3 ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਦੋ ਦੋਨੇ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਆਰਡਰ, ਇਨਵਾਈਟ ਜੋ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਮਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਆ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੋ ਗੈਪ ਹੈ 2 ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੋ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਗੈਪ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ, 2 ਟਾਈਮਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 2 ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਗੈਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਗੈਪ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ 3 ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 3 ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਨ ਤੋਂ। ਸਮਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ
कॉल है इनविटेशन है कौन दिंदा है, तो प्रेजिडेंट दिंदा है। प्रेजिडेंट ही हाउस ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਦੇ ਆ, मतलब इनवाइट करते हैं, कॉल करते हैं मैंबरस ਨੂੰ कि आके मीटिंग करो। ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੈਬਰਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਈ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਪ, ਹੁਣ ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਜਾਂ ਮੰਡੇ ਟੂ ਥਰਸਡੇ, ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਥਰਸਡੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਿਟਿੰਗਸ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਨੂੰ टर्मिनेट करन ਨੂੰ ही एडजर्नमेंट कहते हैं। एडजर्नमेंट मतलब स्थगित कर देना। तो अगर कोई कुछ प्रॉब्लम आ जाए या कोई सैशन का जो मेन टॉपिक सीगा वही कंप्लीट हो जाए, डिस्कशन उस टॉपिक ते कंप्लीट हो जाए, तो उस तो बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंदा है वो एडजर्न कर दिंदा उस सिटिंग ਨੂੰ। सैशन की गल नहीं हो रही है, सैशनस ਦੇ ਵਿੱਚ ही सिटिंग्स ਹੁੰਦੀਆਂ। उस सिटिंग ਨੂੰ टर्मिनेट करन ਦੀ पावर जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ਹੁੰਦਾ वो एक स्पैसीफाइड टाइम ली, चाहे कुछ घंटिया ली, कई कुछ दिनों ली, चाहे कुछ वीक ली, डिपेंड करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के उपर कि वो स्पैसीफिक टाइम ली हाउस की जो सिटिंग है उन्होंने टर्मिनेट कर सकते हैं। और ये टर्मिनेट करने की पावर जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोल हुंदी है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे स्पीकर इन लोक सभा एंड चेयरमैन इन राज्य सभा। तो एडजर्नमेंट इन्हों तो याद कुछ भी नहीं करना, याद सिर्फ डेफिनेशन तो रखो, तो स्टेटमेंट के वाइज आ सकता है कि एडजर्नमेंट का की मतलब है। तो एडजर्नमेंट का मतलब है कि हाउस की एक सिटिंग ही टर्मिनेट कर देना। और ये पावर होंदी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोल। और जो स्पैसीफिक टाइम लिए की जाता है स्थगित किसी हाउस में, तो उन्होंने एडजर्नमेंट कहते हैं। जो टाइम मैंशन ना दिता जाए, मतलब विदाउट एनी टाइम स्केल, कोई टाइम ना स्पैसीफिक मैंशन किया जाए कि इस हाउस की सिटिंग में किन्ने टाइम लिए टर्मिनेट किया गया, जो इनडेफिनेट पीरियड लिए या टाइम को स्पैसीफाई ना किया जाए हाउस में एडजर्न करने के लिए, तो उन्होंने एडजर्नमेंट साइन डाई कहते हैं। एडजर्नमेंट साइन डाई और एडजर्नमेंट का डिफरेंस यही है कि एडजर्नमेंट के विच टाइम मैंशन किया जाता है कि हाउस की जो सिटिंग है उन्होंने किन्ने टाइम लिए टर्मिनेट किया जा रहा है। और एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ कि टाइम स्केल जो है टाइम ड्यूरेशन जो है मैंशन ही नहीं की जाती। इनडेफिनेट पीरियड के लिए हाउस ਨੂੰ एडजर्न कर दिता जाता है, तो उन्होंने एडजर्नमेंट साइन डाई कहते और एडजर्नमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम मैंशन किया जाता है। और ये पावर जो है एडजर्नमेंट साइन डाई ਦੀ एडजर्नमेंट की ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को होंगी है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर लोक सभा के अंदर एडजर्नमेंट हो रही है तो स्पीकर करेगा, राज्य सभा के अंदर एडजर्नमेंट हो रही है, हाउस एडजर्न हो रहा है, हाउस की जो सिटिंग है राज्य सभा की अगर वो एडजर्न हो रही है तो वो चेयरमैन की कोल पावर होंगी है। तो मेन ये यही है कि पावर किहदे कोल है और डिफरेंस की है। एडजर्नमेंट के टाइम मैंशन करते हैं, एडजर्नमेंट साइन डाई के अंदर टाइम मैंशन नहीं किया जाता। और अगर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो हाउस की सिटिंग में एडजर्नमेंट साइन डाई कर दे, तो उस तो बाद अपना आता है प्रोरोगेशन का पार्ट। प्रोरोगेशन का जो पावर है वो प्रेजिडेंट के कोल होंदी है। जो प्रेजिडेंट के कोल नोटिस पहुँच जाता है कि हाउस की जो सिटिंग है उन्होंने एडजर्नमेंट साइन डाई कर दिता गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा, तो उस तो बाद प्रेजिडेंट जो है वो प्रोरोगेशन का नोटिस रिलीज़ कर देंगे। प्रोरोगेशन का मतलब है पूरे के पूरे सैशन में ही एंड कर देना। एडजर्नमेंट का मतलब सीगा सिटिंग में एंड करना, एक सैशन के एक पर्टिकुलर सिटिंग में एंड करना। अगर टाइम फ्रेम मैंशन है तो सिंपल एडजर्नमेंट है, अगर टाइम फ्रेम नहीं मैंशन है तो एडजर्नमेंट साइन डाई है। तो जो एडजर्नमेंट साइन डाई कर दिता जाता है, मतलब सिटिंग में टर्मिनेट कर दिता जाता है इनडेफिनेट पीरियड के लिए, कोई टाइम फ्रेम ना मैंशन किया जाए, उस तो बाद प्रेजिडेंट नोटिस रिलीज कर देंगे प्रोरोगेशन का। प्रोरोगेशन जो है वो खत्म कर दिंदा है पूरे ही कंप्लीट सैशन में। ये किया क्यों जाता है? फॉर एग्जाम्पल बजट सैशन का जो आप एग्जाम्पल ले रहे हैं कि फैबररी टू मई तक का ये सैशन होंदा है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि मई के एंड होने तो पहला ही अप्रैल के विच ही जो बजट सैशन के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट डिस्कस करने सी, जो नोटिस रिलीज़ करने सी या कोई बिल पास करना सी, सारा कुछ हो चुका है, सारा काम जो है बजट सैशन का कंप्लीट हो चुका है। तो मई तो पहला अप्रैल के विच ही कंप्लीट हो गया। सो काम जो कंप्लीट हो गया तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने पता लग गया कि इस हाउस का जो बजट सैशन का काम से वो कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट एडजर्नमेंट साइन डाई करेगा, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं मैंशन करेगा। फिर वो एडजर्नमेंट साइन डाई का जो नोटिस जाएगा प्रेजिडेंट के कोल, प्रेजिडेंट फिर उस प्रोरोगेट कर देगा, मतलब उस हाउस के सैशन में ही कंप्लीटली टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि वह काम कंप्लीट हो चुका है। काम कंप्लीट हो चुका है तो हम मई तक कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है। तो प्रेजिडेंट जो है पूरा प्रोरोगेट ही कर दिंदा, पूरे हाउस के सैशन ही खत्म कर दिंदा है। प्रोरोगेशन सिटिंग नू एज वैल सैशन दोनों नू ही एंड कर दिंदा है। हालांकि जो एडजर्नमेंट है वो सिर्फ सिटिंग नू एंड करता है, प्रोरोगेशन सिटिंग प्लस सैशन दोनों नू ही एंड कर दिंदा है।
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਡਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਊਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਡਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਸਾਈਨ ਡਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਾਊਸਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਟਿਸਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਿਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਸ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਿਸੈਸ ਵਾਲਾ। ਰਿਸੈਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਰੀਅਸੈਂਬਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਟ ਕਰਤਾ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਰੀਅਸੈਂਬਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਜੋ ਮਿਡਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰੀਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਮਿਡਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰੀਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਿਡਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 ਈਅਰਸ ਦਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਟਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਟਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 5 ਈਅਰਸ ਦਾ, 10 ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਊ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਫਰੈਸ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਊ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 1/3 ਮੈਂਬਰ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਊਸ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕੋਲ। ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਨੋਟਿਸ, ਪੈਟੀਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਛ ਬਿਲਸ ਲੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੁਛ ਬਿਲਸ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਿਲਸ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਹੜੇ ਬਿਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨਸ, ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਨੋਟਿਸ, ਪੈਟੀਸ਼ਨਸ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਡਿਊਰਿੰਗ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਮ ਡਕ ਸੈਸ਼ਨ। ਲੇਮ ਡਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੇਮ ਡਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਮ ਡਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਜੋ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਮੈਂਬਰਸ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਮ ਡਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਲੇਮ ਡਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲੇਮ ਡਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਿਊ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਮੈਂਬਰਸ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਮ ਡਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ। ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਹਾਊਸ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਯਾਦ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਟ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਹੈ
या फिर एडजर्नमेंट साइन डाई है। एडजर्नमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम मैंशन करते हैं और एडजर्नमेंट साइन डाई ਦੇ अंदर टाइम नहीं मैंशन करते हैं। ये करने की पावर होंगी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। स्पीकर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे लोक सभा के अंदर और चेयरमैन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे राज्य सभा के अंदर। तो इंपॉर्टेंट ये यही याद रखना है क्योंकि डायरैक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोरोगेट करन दी हाउस दे सैशन में टर्मीनेट करन दी पावर किहदे कोल हुंदी है तो प्रेजिडेंट ही उहदा नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ करते हैं, नोटिस इशू करते हैं। प्रोरोगेशन का समन का भी प्रेजिडेंट ही करते हैं, डिजोल्व करन का भी जो नोटिस है प्रेजिडेंट ही रिलीज़ करते हैं। एडजर्नमेंट का जो नोटिस है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिलीज़ करते हैं। तो ये तो सी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हुण आपां जो देख रहे सी बिल्स का जो पोर्शन देख रहे थे कि किहड़े बिल्स ने जो लोक सभा के डिजोल्व होने तो बाद लैप्स हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देनी है तो कि पहला तो जो बिल लोक सभा के अंदर पेंडिंग होंगे हैं जिन्हों के उपर हजे लोक सभा ने कोई साइन नहीं किया होंगे, उन्होंने ना तो पास किया होंगे ना रिजेक्ट किया होंगे, तो वो बिल्स जिन्होंने लोक सभा के अंदर हजे जो पेंडिंग है वो लैप्स हो जाते हैं। और दूसरी साइड तो वो बिल जो कि लोक सभा के अंदर पास कर दिते गए थे लेकिन राज्य सभा के अंदर पेंडिंग है, मतलब उन्होंने अजे तक राज्य सभा ने कोई साइन नहीं किया वो उपर, कुछ रिकमेंडेशन नहीं देती हैं, तो वो बिल्स भी जो है लैप्स हो जाते हैं। और दूसरी साइड पर जोड़े बिल्स पेंडिंग ने राज्य सभा के अंदर पर लोक सभा ने जिन्होंने पास कर दिता है वो बिल लैप्स नहीं होंगे। मतलब जो बिल्स लोक सभा ने पास करते हैं लेकिन राज्य सभा ने अजे पास नहीं किया है वो लैप्स हो जाते हैं। और जो बिल्स राज्य सभा ने पास करता सी पर लोक सभा के अंदर पेंडिंग सीगा वो बिल लैप्स नहीं होंदा। राइट। और जो तीसरा आ जाता है कि अगर दोनों ही हाउसेज ने कुछ बिल्स के उपर जिदा डिसएग्रीमेंट हो जाता है लोक सभा एंड राज्य सभा का, तो अगर दोनों हाउसेज का किसी पॉइंट के उपर डिसएग्रीमेंट हो गया तो एक जॉइंट सिटिंग की जो प्रोविजन बिठाई जाती है। अगर जॉइंट सिटिंग की प्रोविजन का नोटिस हाउस के डिजोल्व होने तो पहला आ जाता है तो वो वाला बिल भी लैप्स नहीं होंदा। तो ये जो कंप्लीट है अज सिर्फ मैं तुम्हें थोड़ा ओवरव्यू जो दे देनी जो अपना नैक्सट बिल्स का आप कंप्लीट सैशन करांगे वो पूरा डिटेल के डिस्कस कर लाँगे कि किहड़े बिल ते इफैक्ट पैंदा है लोक सभा के डिजोल्व होने का। तो ये तो सीगा डिजोल्व का आप एक बार पॉइंट डिस्कस कर लिया। हुण दो टर्म्स होंदियां एक हुंदा ऑफिस ऑफ विप, इनू एज इट इज ही समझ लो विप का ऑफिस की हुंदा है और प्लस जो बाकी दी जो टर्म्स है वो की हुंदियां। तो एक हुंदा ऑफिस ऑफ विप। विप का मतलब की हुंदा है जो विप हुंदा है इहदा काम हुंदा है जो मैंबर्स हुंदे हैं पार्लीमेंट के जो मैंबर्स होंगे उन्होंने अटेंडेंस लेना। तो ऑफिस ऑफ विप होंदा पार्लीमेंट के अंदर ऑफिस ऑफ विप। इस ऑफिस ऑफ विप का काम होंगे जो मैंबर्स होंगे पार्लीमेंट के चाहे लोक सभा के चाहे राज्य सभा के या किसी भी पार्टी के मैंबर्स ने उन्होंने मैंबर्स की अटेंडेंस लेना। पार्टी के जो मैंबर्स होंगे उन्होंने मैंबर्स की अटेंडेंस लैन का काम जो है वो विप का जो ऑफिस होंगे वो करता है। प्लस ये मैंबर्स का जो बिहेवियर होंगे पार्लीमेंट के अंदर उन्होंने भी मॉनीटर करते हैं कि अगर वो कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं पार्लीमेंट के अंदर तो उन्हें उपर डिसिप्लिनरी एक्शनस भी ले सकते हैं। तो ये होंगे ऑफिस ऑफ विप। और एक जो सैकेंड टर्म होंगी इंपॉर्टेंट वो होंगी है कोरम। कोरम का मतलब होंगे मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी चाहिए। आप सैशनस तो देख ले कि 3 सैशनस होंगे और ये भी आप पता कर लिया कि सम्मन प्रेजिडेंट करते हैं पर वो सम्मन करने के लिए मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। मतलब एक सैशन के स्टार्ट करने के लिए मिनिमम हाउस के स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए उन्होंने क्योरम कहते हैं। तो कोरम जो है वो होंगी है 1/10 मतलब टोटल जो मैंबर्स ने उन्होंने 1/10 पोर्शन जो है मैंबर्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए हाउस के किसी भी सैशन को स्टार्ट करने तो पहला। अगर मिनिमम मैंबर्स प्रेजेंट नहीं है तो हाउस का सैशन जो है स्टार्ट नहीं होंगे उन्होंने टर्मीनेट कर दिता जाता है। तो हम टोटल स्ट्रेंथ जिदा आप लोक सभा के ही मैक्सीमम स्ट्रेंथ है 550 तो वह 1/10 करांगे तो लोक सभा के 55 मैंबर आ जाएंगे। राज्य सभा के मैक्सीमम स्ट्रेंथ होंगी है 250 मैंबर्स की 1/10 अगर आप इहदा करांगे तो 25 आ जाएंगे। तो मतलब है लोक सभा के किसी भी सैशन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 55 मैंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए फिर ही सैशन स्टार्ट होएगा, चाहे बजट है चाहे मॉनसून है चाहे विंटर सैशन है। और राज्य सभा के अंदर 25 मैंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए ताही जो वो सैशन है वो स्टार्ट होएगा, नहीं तो सैशन स्टार्ट होने तो पहला ही टर्मीनेट कर दिता जाएगा उन्होंने। तो ये सीगा कोरम का टर्म। कोरम लिए इन्ना याद रखना कि 1/10 मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो होनी चाहिए किसी भी हाउस के सैशन को स्टार्ट करने के लिए। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यही आ जाता कि कोरम के मिनिमम स्ट्रेंथ का कितनी होनी चाहिए 1/10 होनी चाहिए। राज्य सभा का भी 1/10 लोक सभा का भी 1/10 दोनों हाउसेस के उन्होंने सैशन स्टार्ट होने के लिए मीटिंग स्टार्ट करने तो पहला इन्ने मैंबर्स जो है वो प्रेजेंट होने ही चाहिए 1/10। ये इंपॉर्टेंट यही है 1/10 का कॉन्सैप्ट।
डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि कोरम दे विच किन्ने मैंबरस होने चाहिए, तो कोरम के लिए मिनिमम स्ट्रेंथ के लिए 1/10 मैंबर होने चाहिए। सो 1/10 नूं एज इट इज़ याद कर लेना। हुण अगर आप गल करिए लैंगुएज की कि जो पार्लीमेंट है इसकी लैंगुएज किहड़ी है, मतलब जो ऑफिशियल लैंगुएज है वो किहड़ी है, तो पार्लीमेंट दे विच जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों नूं ही एज एन यूज़ किया जाता है। ऑफिशियल लैंगुएजेस एक एक्ट आया सी 1963 दे विच, जिहदे विच इंग्लिश के नाल हिंदी नूं भी कंटिन्यू किया गया सी, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों का यूज़ हो सकता है पार्लीमेंट के अंदर। प्लस जो रीजनल लैंगुएजेस ने, मतलब जो मदर टंग होंगी किसी परसन की, वो भी उन्होंने यूज़ कर सकता है पार्लीमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल पंजाब का कोई जो स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली चूज़ करके मैंबर भेजती है पार्लीमेंट के अंदर, या कोई भी मैंबर राज्य सभा लोक सभा के अंदर गया पंजाब तो मैंबर है जो पंजाब तो बिलोंग करता है और मैंबर है वो पार्लीमेंट का, और उन्होंने ना तो हिंदी आती ना ही इंग्लिश आती है, तो अपनी मदर टंग पंजाबी दे विच भी उत्थे अपने पॉइंट्स है या कोई भी बिल्स के उपर डिस्कशनस हो रही हैं उन्होंने पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मदर टंग दे विच बोल सकते हैं। तो उत्थे ही जो ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन का जो प्रोविजन है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। तुसीं अगर देखा हो न्यूज़ चैनल्स वगैरह तो जो पार्लीमेंट जो सैशनस होंगे वो जो मैंबरस होंगे मिनिस्टर्स होंगे उन्होंने हैडफोन टाइप का कन्ना ते लग्या होंदा, वो हैडफोन यही होंगे और ट्रांसलेटर्स होंगे कि अगर कोई मैंबर अपनी मदर टंग दे विच बोल रहा है, हुण कोई पर्सन उत्थे पंजाबी दे विच बोल रहा है क्योंकि उन्होंने हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, और दूसरी साइड ते पर्सन है उन्होंने सिर्फ हिंदी इंग्लिश ही समझ आती है, उन्होंने पंजाबी समझ नहीं आती है, तो पर्सन अपनी मदर टंग दे विच बोल सकता है, पर दूसरे पर्सन जिन्होंने वो लैंग्वेज नहीं समझ आती है वो उस हैडफोन का यूज़ करते हैं। वो एक ट्रांसलेटर होंदा है, तो उस मदर टंग दे विच जो पर्सन बोल रहा होंदा उन्होंने डायरैक्टली हिंदी इंग्लिश के विच ट्रांसलेट कर देंगे। तो इस अकॉर्डिंग जो पार्लीमेंट का जो सैशनस है वो कंडक्ट किया जाता है। लैंगुएज में एज अ बैरीयर नहीं रखा गया है, तुसीं हिंदी भी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश भी यूज़ करते हैं, प्लस मदर टंग भी यूज़ कर सकते हैं, उत्थे ट्रांसलेशन की जो प्रोविजन है वो भी प्रोवाइड की गई है पार्लीमेंट के अंदर। तो ये दसी गए जो पार्लीमेंट के सैशनस होंगे मीटिंग्स, और आप जो इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए ऑफिस ऑफ विप, कोरम, जो लैंगुएजेस तो जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे ने इन्हों एज इट इज़ याद कर लो। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है कई बार जो की पॉइंट्स है इन्हों तो ही डायरेक्टली MCQ क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट वाइज भी आ जाता और डायरेक्टली डेफिनेशन तो भी आ जाता है कि कोरम कितनी होनी चाहिए, तो 1/10 मैंबर की जो है कोरम होनी चाहिए, मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए सैशन को स्टार्ट करने के लिए। तो ऑफिस ऑफ विप का की काम होंगे, ऑफिस ऑफ विप का काम होंगे कि जो पार्टी के मैंबरस है उन्होंने अटेंडेंस लेना, प्लस उन्होंने बिहेवियर में मॉनीटर करना उसका काम होंगे। समन कौन करते हैं किसी भी सैशन में, तो समन करने की जो पावर है प्रेजिडेंट कॉल होंगी है। डिजोल्व करने की लोक सभा के हाउस में भी जो डिजोल्व है लोक सभा का हाउस वो भी प्रेजिडेंट द्वारा किया जाता है, रिकमेंडेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देंगे हैं। एडजर्नमेंट है जो, तो एडजर्न कौन कर सकता है, स्थगित कौन कर सकता है किसी भी सैशन की सिटिंग में, हाउस की सिटिंग में, तो उस हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे उसके कोल पावर होंगी है। प्रोरोगेट करने की पावर, उस सैशन को कंप्लीटली एंड करने की पावर जो है वो प्रेजिडेंट एक नोटिस इशू करके कर सकते हैं। तो ये आप अज डिस्कस किया। इस तो बाद अपना नैक्सट सैशन रहेगा बिल्स का। बिल्स में आप कंप्लीट डिस्कस करांगे कि इंट्रोड्यूस किद्दां होंदे है, उन्होंने उपर डिस्कशन किद्दां होंदी है, किहड़े बिल किहड़ी कैटेगरीज च आंदे और आर्टिकल किहड़े इन्हां दे नाल रिलेटेड ने। तो वो सारा कुछ आप अपने नैक्सट सैशन बिल्स ऑफ पार्लीमेंट के अंदर डिस्कस करांगे। अज का जो अपना सैशन सीगा सैशनस ऑफ पार्लीमेंट का ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप तुम चंगी तरह समझ आ गया होगा। स्टिल किसी टॉपिक कोई डाउट होए तो कमेंट कर देना, मैं नैक्सट सैशन थोड़ा डाउट क्लीयर कर दूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।